students. In previous lecture, I explained you chapter 2 input and output devices. You all are aware about input and output devices. So here input device, it means input device allow us to send information to the computer. Input to a computer is usually given by clicking the mouse or typing on the keyboard. Means here in the input device with the use of keyboard we can enter some data. Means keyboard की मदद से हम data enter कर सकते हैं. So this is a input device. And another point, output device. So output devices allow us to receive information from the computer. Means output device क्या allow करेगा? Receive the information from the computer. And output from the computer may be printouts from the printer. And जो आपका output है वो कंप्यूटर में से प्रिंटर की मदद से आप लोग को मिल सकता है. Then sounds on speaker, they all are also the output devices. And now we move to our worksheet, means exercise portion. Here I am not explaining you to more because in two videos I already explained regarding input and output device, and the otherwise and another videos I also revision this chapter. And now we are moving to our worksheet. Question 1. Who am I? Write my name in the blank. So here you everyone see this all picture. First picture is monitor, second one is switch, third one is speaker, fourth one picture is printer, fifth one mouse, sixth one keyboard, and last one is a CPU. So we move to our question A. I am an output device. मैं output device हूँ. I am used when you want to listen to sound that is stored on your computer. Means आपके कंप्यूटर में से गाना सुन सकते वो मैं हूँ. I can be placed on your desk. मैं आपके डेस्क पे भी होता हूँ. On the floor, on the wall. मैं आपके फ्लोर पे भी होता हूँ या वॉल पे भी होता हूँ. Who am I? आप लोग किसकी मदद से गाना सुन सकते हो? We are listening music with the use of speakers. So here your answer is speakers. S-P-E-A-K-E-R-S. Speakers. Question 2. B. I am an output device. मैं क्या हूँ? Output device. I am used in office. मेरा यूज़ ऑफिस में होता है, स्कूल्स एट्सेट्रा. ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, and any other places I use to make many copies of the text entered in the computer. मीन्स कि मेरा यूज़ ऑफिस में, स्कूल में जो टेक्स्ट कंप्यूटर में एंटर किया हुआ है उसका कॉपी करने के लिए होता है. आई कैन मेक दिस डॉक्यूमेंट फेयरली एंड क्विकली. सो हु एम आई? मैं कौन हूँ? किसकी मदद से आप लोग प्रिंट निकाल सकते हो बच्चों? So with the use of printer we can take out print on the paper. किसकी मदद से आप लोग प्रिंट निकाल सकोगे? Printer. So here in B your answer is printer. So spelling is printer.
printer, printer. Now see, I am an input device. मैं क्या हूँ? Input device हूँ. I help you in typing commands. मैं आपको कमांड टाइप करने के लिए यूज़ होता हूँ. And you can see them on the monitor. मीन्स मेरी मदद से आप कमांड टाइप कर सकते हो और वो कमांड मॉनिटर में भी आप देख सकते हो. आई हैव मैनी कीज ऑन माई बॉडी. सो बच्चों, किसकी बॉडी पे बहुत सारी कीज होती है? हु एम आई? सो हियर योर आंसर इज कीबोर्ड. KEYBOARD. Keyboard. Now we move to our D question. I am neither an input nor an output device. मैं input device और आउटपुट डिवाइस भी नहीं हूँ. आई प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इट्स मीन्स माहिती एंड गिव द आउटपुट मीन्स मैं इनपुट डिवाइस भी नहीं हूँ, आउटपुट डिवाइस भी नहीं हूँ, बट मैं क्या करता हूँ? प्रोसेस करता हूँ इंफॉर्मेशन की और आपको आउटपुट देता हूँ. तो हूँ एम आई? किसकी मदद से प्रोसेसिंग होती है बच्चों? सो हियर योर आंसर इज CPU. क्या आएगा आपका आंसर? CPU. CPU. Do you know the spelling of do you know the full form of CPU? So the full form of CPU, Central Processing Unit. The spelling of Central, 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 PROCESSING, Processing, UNIT, Unit. Okay, so in the answer you can write CPU. CPU. Now we move to our second question. Is take for true or false. जो आंसर सही है वहीं पे आपको क्या करना है? टिक मार्क. योर आईज आर इनपुट डिवाइस ऑफ योर बॉडी. मीन्स आपकी आईज है वो इनपुट डिवाइस है अपनी बॉडी में. तो यहीं पे आंसर क्या आएगा? यस, आईज क्या है हमारी? इनपुट डिवाइस. वाई आईज इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस? बिकॉज आईज की मदद से हम लोग देख सकते हैं. सेकेंड, a computer use an output device to show us something. मीन्स कंप्यूटर वो आउटपुट डिवाइस है और उसका यूज़ कुछ दिखाने के लिए होता है. सो समथिंग मीन्स कुछ थिंग्स. सो हियर योर आंसर इज true. You can tick mark on to the true option. Now we move to our C question. We use input devices to tell the computer what to do. Means हम input device का यूज़ करते कंप्यूटर को कुछ बताने के लिए. मतलब what to do, क्या करना है
वो, तो यहीं पे आंसर आएगा ट्रू. नाउ वी मूव टू अवर अदर क्वेश्चन. Here, Sonu and Monu, the baby kangaroos. यहीं पे सोनू और मोनू क्या है? बेबी kangaroo are lost. सोनू कैन रीच his मदर. सोनू को कहाँ पे जाना है? उसकी मदर के पास. बाय होपिंग ऑन दे आउटपुट डिवाइस. सोनू अपनी मम्मा के पास आउटपुट डिवाइस की मदद से जाएगा. और मोनू कैन रीच हिज मदर बाय होपिंग ऑन दे आउटपुट डिवाइस. मीन्स मोनू अपनी मदर के पास किसकी मदद से जाएगा? आउटपुट डिवाइस की मदद से. और सोनू किसकी मदद से जाएगा? इनपुट डिवाइस की मदद से. सो मोनू कैन रीच हिज मदर बाय होपिंग ऑन द आउटपुट डिवाइसेस. हेल्प सोनू एंड मोनू. सोनू और मोनू का आपको क्या करना है? हेल्प करना है टू रीच देयर मदर्स. कहाँ पे जाना है उनको? उनकी मम्मा के पास. बाय आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. क्या फाइंड करके जाना है उनको? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस. सो हियर कीबोर्ड इज, क्या है कीबोर्ड? सो हियर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. Sorry. So here keyboard is your input device. Second picture is speaker. So here speaker is which device? So speaker is output device. कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस. Now, third one picture is monitor. मॉनिटर कौन सा डिवाइस है बच्चों? मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस. वो क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि मॉनिटर की मदद से हम सब कुछ देख सकते हैं. विद द यूज ऑफ मॉनिटर वी कैन सी आवर कंप्यूटर स्क्रीन. मीन्स हम जो भी कमांड्स अप्लाई करते हैं वो कहाँ पे दिखेगा? कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पे. नाउ मूव टू अवर फोर्थ पिक्चर. दिस इज ए माउस. वो क्या है? माउस है. तो हियर माउस इज विच डिवाइस? माउस इज एन इनपुट डिवाइस. कौन सा डिवाइस है वो? इनपुट डिवाइसेस. नाउ वी मूव टू अवर अदर ऑप्शन. कैमरा. कैमरा क्या है? कैमरा इज एन इनपुट डिवाइसेस. कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइसेस. एंड the last picture, this is a printer. वो क्या है? With the use of printer we can take out print on the paper. मीन्स हम पेपर में क्या कर सकते हैं? प्रिंट निकाल सकते हैं. सो printer is which device here? So here printer is an आउटपुट डिवाइसेस. प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइसेस. सो चिल्ड्रंस
Do you understand input and output devices? So here सोनू को कहाँ पे जाना था उनकी मदद के पास? इनपुट डिवाइस की मदद से सोनू को अपनी मम्मा के पास जाना था। मोनू को भी अपनी मम्मा के पास किसकी मदद से जाना था? आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। तो मैं यहीं पे आप उनका वह आपको सर्कल करके दिखा दिया है। अब मैं ड्रॉ कर दूंगी कि कैसे वो अपनी मम्मा के पास जाता है। ओके, हियर यू कैन इजीली सी। We move to our fourth question. Swati wants to buy. Swati wants to buy some input and output devices for her computer. स्वाति ने क्या बाय किया है? बाय करना है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस बाय करना है। हेल्प हर by circling and two input device in red color and two output devices in a blue color. So आपको क्या करना है इन दिस एक्सरसाइज? आपको ये एक्सरसाइज में जो जो डिवाइसेस इनपुट है उनको रेड कलर से सर्कल करना है और जो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस है उनको कौन से कलर से करना है? ब्लू कलर से। So here in this picture you can see some input devices and some output devices. So आपको हेल्प क्या करना है? स्वाति को बाय करना है इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस को आपको रेड कलर से सर्कल करना है और आउटपुट डिवाइस को ब्लू कलर से। तो यहीं पे स्पीकर इज योर आउटपुट डिवाइस। यहीं पे स्पीकर कौन सा डिवाइसेस है? आउटपुट डिवाइसेस। तो यहीं पे मैंने क्या किया है? स्पीकर पे ब्लू कलर से सर्कल कर दिया है। तो वो भी आपको कर देना है इन योर टेक्स्ट बुक। सो हियर प्रिंटर इज ऑल्सो योर आउटपुट डिवाइसेस। तो वहीं पे भी आपको क्या करना है? सर्कल करना है। कौन से कलर से करना है बच्चों? ब्लू कलर से। सो हियर कीबोर्ड एंड माउस इज योर इनपुट डिवाइस। सो कीबोर्ड पे भी आपको रेड कलर से सर्कल करना है और यू कैन सर्कल ऑन द माउस। माउस को भी रेड कलर से सर्कल करना है बिकॉज दे बोथ आर द आउटपुट डिवाइस। दैट्स व्हाई वी कैन सर्कल विथ द red color. I hope you all are understand this chapter and you all are understand this chapter exercise. I hope you all are write this exercise in your textbook and you can submit into our school application. Some students don't have any textbook, so these students are write down this exercise in your computer notebook and then after they are submitting. मीन्स जो स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखेंगे और जो बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है तो वो बच्चे अपनी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करके स्कूल की एप्लीकेशन में सबमिट करवा देना है। वो कब सबमिट करवा देना है आपको? 11 डेट को। विच डे यू सबमिटेड योर एक्सरसाइज? ऑन 11 डेट। ओके, आई होप यू कैन write in your textbook. Stay safe, stay healthy. Thanks. Have a nice day.